Professor Bipin Chandra. And almost after every lecture, he used to repeat something which is still in my mind. He used to say, even the educator needs education. I never realized the significance of it, why at the end of every lecture he repeats. And this is a saying from Marx, that every educator needs educators in that sense. So it is in this context that we have amidst us today an educator who will like to engage with us academicians and will like to discuss the context that even academicians need education. But what kind of education? What should be the goal of that education? And that is the framework of values about which he wants to speak. But before he speaks, I think all of us know very little about Swamiji, and I will request Arushi Goswami to say something about it. And before that, possibly, we have to have a ritual which is very important, and that ritual is lighting the lamp. Because Ghor Andher must be challenged by lighting the lamp. This ritual is a must, and I think first we'll go through it, then Arushi will introduce the speaker to us. Thank you very much. I will request our Vice Chancellor to say a few words after that. And this is my request to him. He's not feeling well, I know that, but I think we'll feel very encouraged and satisfied if he says a few words after that. Arushi. A very good evening and a welcome to everybody sitting here. It gives me immense pleasure that this generation, youth, and this beautiful crowd could come before the time, and it made us very inspired, motivated, and happy. I welcome everyone, and on the behalf of the university, being a part of it for last couple of weeks, I welcome Maharaj here for giving his wisdom and enlightenment. A very special thank you to the Department of Adult Education, Anand sir, Vice Chancellor sir, for being here, everybody who has supported us and is here. It's a different kind of a seminar for everyone. So we have a very interesting questionnaire session after the talk. And when I start from introducing Maharaj, I don't think so I have enough words. He comes from a history of 600 years and a speaking experience of 18 years at the age of 25. He started speaking when we couldn't even walk. He started speaking at the age of 7. He is the 38th generation of Manmadhugarsha Vaishnavacharya. He's one youth icon, speaking, delivering his wisdom, and showing the path to this generation which is required in this era. He has been speaking in different international universities, and we landed here in this, and as Ajay sir says it, one of its kind university. He is one ocean of wisdom, irrespective of his age. He has a logical approach, egalitarian speech, and a secular thought towards what spirituality is, what art, what living is, what values is, and what ethics is in life. More than dividing, more than being derived by today's material world, it is more important to find yourself within yourself. We have only one mission to stand here. He has been driving one mission all his life, that is, we make humans. It is more important to become a human than any other professional, because if you're a human, by default you will come out to be an excellent professional, and later in life we will become a beautiful country. And that is, I think, our mission. And I fold my hands before him and all the beautiful educators, teachers, professors sitting here for getting your time out. Time is money, and you have paid it in a beautiful way. So I think I welcome everyone, and I request Vice Chancellor sir to please come and say a few words of wisdom. Thank you. I'm extremely happy that group of adult education, along with Vijayanti Productions, they have come together and made this evening possible for us, where we have Swamiji Maharajji with us, going to speak on values.
in life. We are very thankful to you and really heartily welcome Maharajji on behalf of the university, on my own behalf. In fact, I was telling since yesterday I have been having fever and I was not sure whether I will be able to make it. But after having seen you, I think my fever is gone. So first step is already there. So I hope I'll be able to sit through the whole lecture here. I think it's very important, as has been mentioned earlier, that the core values which a human being must possess. I think it's not a question of must possess. I personally feel the core values exist in every human being. All of us being what we call as the Ansh of Shiva. I belong to Shaivite, to Kashmir Shaivism. I come from Kashmir and I've been studying and reading a little bit about Kashmir Shaivism. And it says that one shloka which I recite sometimes is Param Parastam Gehana Tanadim Ekam Vivishtam Bahuda Guhasu Sarva Layam Sarvachara Charastam Tameva Shambhu Sharanam Prapatti. That Shiv exists in everywhere. So the core values probably exist everywhere. But what happens in our race to achieve success? We are following success. We don't, if we do well, I think success will follow us. But I think we all try to follow success. And in the process, the good qualities which are inherent in every human being get suppressed. So I feel it's a suppression mechanism which we impose on ourselves rather than activation mechanisms, because the basic values exist everywhere. So as was mentioned that whatever we be, whatever profession we take, wherever we want to achieve the highest goals in life, the core values must not be suppressed at any cost. So that is the basic tenet on which we should all work. The other thing is that being a scientist, I belong to science profession. When you read about what is going to come in future, in fact I was reading a small article which says scientists are now trying to define the region in the brain where consciousness exists. A recent article has come. And second thing is they are moving more towards making artificial intelligence into the machines. And they're saying the machines are finally going to control us. They're already controlling us. Your mobiles and your computers and everybody is controlling us. So basic core values of humans will be now directed by the machines. And that is where these kinds of lectures, how to roll of these value system in our education, in our day-to-day life, in our social systems become very, very important. So I'm very happy that this lecture has been organized by none other than Maharajji himself, and I really look forward to your listening. I hope I'll be able to sit through all your lecture. Thank you very much for coming. Thank you so much, sir. I'd request one person who has stood by us from the beginning, who gave us the strength that we could do it, Sant Prakash ji, to come over and please welcome Maharaj with the bouquet. Give a big round of applause for him. So the last proceedings, the Delhi team of Vajanti Productions worked with all their love and dedication for this, and they would really want to welcome Maharaj on this day. And I'd request Vipin ji to please go and give him the bouquet. Dhirendra ji to come here and give away the flowers to Vice Chancellor, sir, please. So without taking any time further, we'd start with the session. Before he was supposed to sit and speak, but he has requested he wants to stand and speak on the mic for you all. So I'd invite him here and we shall start. Thank you so much for being here. I'd get back to you soon. Please welcome. I will start with a small prayer, and it would be excellent if you all join me. Chaitanyam Sumanam Manam Manamanam Manam Manam
मनसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् श्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। I'm feeling extremely fortunate to be here. I bow down my head to the Supreme Personality of Godhead. I bow down my head to all the respected dignitaries, Vice Chancellor Sir, all the professors. I bow down my head to everybody who is sitting here. मैं आप सबसे बस मिलने आया. Let me relax the whole evening first. ये बस एक थोड़ी फॉर्मल मुलाकात है. इस विश्वविद्यालय का, इस यूनिवर्सिटी का one of its kind, as everybody said. बहुत नाम सुना. मेरा दूसरा घर एयरपोर्ट है, तो सामने से निकलता था, and always I used to see JNU. Feeling so fortunate. I could never imagine, I couldn't believe that one day I will be inside this beautiful campus and speaking in front of you. God is so merciful. मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ और आप सब इतने धैर्य से और इतनी लगन से यहाँ कुछ सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं. अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूं. फर्श से ताअर्श मुमकिन है, फर्श से ताअर्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज. फर्श से ताअर्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज. फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पर पहले इंसान तो बन.
फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पहले इंसान तो बन, पहले इंसान तो बन, ह्यूमन, ह्यूमेन हो गया, ह्यूमन। लाइफ इज ऑल अबाउट वैल्यूज। मैं कुछ भी बात शुरू करने से पहले एक सच्चाई कहूं तो मेरी बहन आरुषि ने और ये सब जितने बंदे आपको सफेद टी शर्ट में दिख रहे हैं, बड़ा हाइप किया था इन्होंने, बल्कि यहां आने से पहले थोड़ा सा डरा भी था। शी सेड, यू नो पुंडरिक जी, यू गोइंग टू स्पीक इन JNU, यू नो व्हाट इज दिस? मैंने कहा यार ऐसा कौन सा बबाल है जहां लेके जा रही है? There would be scholars who would be listening to you. I said, okay. Then yesterday, I was just sitting at Kejriwal ji's house, and she then informed me, you know, tomorrow Vice Chancellor sir is also coming. I said, okay. फिर सोचने लगा तो मैंने कहा अच्छा मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आता हूँ जरा। I tried to think, क्या कहूँ, क्या बोलूँ। 3, 4, 5 दिन से बहुत व्यस्त था, सोच भी रहा था, सुबह से स्पेसिफिकली। कल रात भी कुछ 2-4 YouTube पे वीडियो ढूंढता रहा कि अच्छी यूनिवर्सिटी पे किसी का लेक्चर मिल जाए। कुछ मिला नहीं, पर आपके सामने ब्लैंक आके खड़ा हुआ, शून्य आके खड़ा हुआ। शायद प्रारंभ शून्य से ही है। शून्यायतम जगत सर्वः, हर चीज शून्य है, बस पूरा प्रयास एक को लगाने का है। When one is involved, one will stand with 0, then 0 will gain value. If 0 will be standing before 1, it's again a problem. But if 0 will be standing after 1, the digit will jump from 2 to 9, 1 more 0, from 11 to 99. Eko ham bahushyamah. वैसे मैं जहां भी बोला, प्रयास किया, स्पॉन्टेनियस बोला, फ्रेश खिलाने का मजा दूसरा है। और पढ़ के आया 10-20 बार तो सच बताऊं मेरे दोस्त कि जब मंच पर आकर बैठा तो सब भूल गया। तो आई थॉट लेट मी बी स्पॉन्टेनियस। आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई लिनिएज। My father, my grandfather, my great-grandfather, my great-great-grandfather, by their blessings, I born in that background. All the scholars were around me. और उस संग से ऐसा रंग मेरे ऊपर चढ़ा। एक बार मदर टेरेसा का एक कोट पढ़ रहा था। उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट दिया। शायद इस परिवार में जन्म लेने के बाद इस अध्यात्म की धारा पर उस संदर्भ ने मुझे और आगे बढ़ाया। वो कह रही हैं, the biggest problem in the whole world is hunger. Not the hunger of stomach, the hunger of heart. Hunger of stomach तो खाना पूरा कर देता है, प्रयास पूरे कर देते हैं, पर उसके बाद भी व्यक्ति अतृप्त है, उसके बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट है, उसके बाद भी चैन की नींद नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है।
that hunger of heart, hunger of stomach खाने से समाप्त हो सकता है, but hunger of heart with love, with compassion. Everybody is just wanting to satisfy that hunger of heart. सब बन गया, हमने सब पा लिया, पर बंधुओं सब पाने के बाद भी जो असली मीनिंग ऑफ लाइफ है, स्माइल, प्रसन्नता, हमने उसको खो दिया. आप ह्यूमन हो, ये सबसे पहले क्या प्रूफ करता है? आपकी स्माइल. योर स्माइल मेक्स यू ह्यूमन. यू हैव एवरीथिंग बट यू आर नॉट स्माइलिंग. Smile makes you human. A dog cannot smile. A cat cannot smile. A donkey cannot smile. और अगर रात में कोई बिल्ली आपको हंसते दिख भी जाए इस कैंपस में, तो हनुमान चालीसा पाठ करोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. मिल भी जाए उसके बाद भी डर लगेगा. They cannot smile. A human can smile. We all can smile. Prasadastu prasannata. सबसे बड़ी उपलब्धि मुस्कुराहट की है. हमारी पुरातन भारतीय परंपरा से जब कोई किसी enlightened soul के पास, कोई sage के पास, if they goes to a temple or to a religious center, they always get prasad, which we call in Sanskrit prasad. Sanskrit scriptures are saying the best prasad is prasannata. That smile. सबसे बड़ी लाइफ की उस वैल्यू का चुनाव हो, उस निर्णय से लाइफ को आगे बढ़ाया जाए जो अल्टीमेटली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सके. वो जीवन है. अन्यथा सब शून्य हो जाएगा. मुस्कुराहट जीवन का जज्बा दे सकता है. आज समाज जिस स्थिति पर पहुंच रहा है, जिस हिंसात्मक प्रवृत्ति तक चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध करने में लगा है. कंपटीशन है. कॉलेज का कंपटीशन है. टीचर का कंपटीशन है. गुरु का कंपटीशन है. मंदिर मस्जिद का कंपटीशन है. तीर्थ का कंपटीशन है. और उस युद्ध को लड़ते लड़ते व्यक्ति के हाथ में कुछ लगा नहीं. वो उसी अतृप्ति से पैदा हुआ था और वो उसी अतृप्ति से समाप्त हो गया. जो पायो संतोष धन, तो सब धन धूरी समान. अगर आपके पास सेटिस्फैक्शन है, तो आपसे बड़ा दाता, आपसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति इस धरती पर दूसरा नहीं हो सकता. पर सेटिस्फैक्शन की एक बाउंड्री होनी चाहिए. मैं एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, तो मुझसे पूछा कि अगर सभी सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा. My father always used to say, in the morning when you get up, have as many desires as you want. Okay, today I will earn 10,000 rupees or 10 lakh rupees.
till evening. You should work hard, wisely, ईमानदारी से. पर अगर शाम को 6 बजे इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारी जेब में 10 रुपए की नोट लगे, then you have to satisfy. कोई बात नहीं, it's okay. It was in my destiny or it was something, मेरी से कोई गलती हुई. I might made a mistake. That's why it happened. The problem is कि जब हम कुछ पाते हैं तो उसका श्रेय अपने ऊपर दे देते हैं, पर जब हम कुछ खोते हैं तो उसका श्रेय ईश्वर के ऊपर दे देते हैं. एक व्यक्ति मुझे मिला, रोडपति था, करोड़पति हो गया. पूछा मैंने ऐसे कैसे हुआ? बोला यू नो कितना हार्ड वर्क किया, खून को पसीना बना के बहा दिया, didn't sleep, 22 hours I was working in a day, was doing everything, तब इतना बड़ा जाके एम्पायर खड़ा हुआ. 2 साल के बाद मिला, फिर सड़क के किनारे बैठा था. मैंने पूछा अब क्या हुआ? तो बोला ऊपर वाला जाने. अब तू क्यों न जाने? जब पाया था तब मैं जानूं, जब खो गया तब ऊपर वाला जाने. पर उस एक्सपीरियंस से हमसे क्या भूल हुई, इस बात का अनुभव लेके जिसने अपने जीवन को सुधार दिया और फिर संतुष्ट हुआ और फिर आगे चला, यही जीवन की सबसे बड़ी परिधि है. आपके पास सब है, पर आपके पास प्रसन्नता है कि नहीं? आपके पास सब है, आपके पास सेटिस्फैक्शन है कि नहीं? आपके पास सब है, सारे धर्म हैं, सारे विचार हैं, सारे चिंतन हैं, पर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ना जानते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी जीवन की परिभाषा ये प्रसन्नता है. सबसे बड़ी जीवन की परिभाषा ये संतुष्टि है. सबसे बड़ी जीवन की परिभाषा एक दूसरे के प्रति हॉस्पिटैलिटी है. हमारे संचालक महोदय वर्णन कर रहे थे, जीवन का प्रारंभ सत्य से होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रूथ. वो दया पर थोड़ी देर रहता है, stays as hospitality, mercy, and it finishes at love. These are the key points which tells you that okay, you are living a life. You have truthfulness. एक समय था आप किसी से कह दो कि कल आपको झूठ बोलना है, बंदे को नींद नहीं आती थी, कल झूठ बोलना है. हमारी माइथोलॉजी में महाभारत का प्रसंग है, युधिष्ठिर को कृष्ण को बुलवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ गई, फिर भी नहीं बोल पाया अच्छी तरह. अश्वत्थामा हत हत नरोवा कुंजरोवा. किसी से कह दो कल आपको झूठ बोलना है तो नींद नहीं आती थी, अब किसी से कह दो कल आपको सच बोलना है तो नींद नहीं आएगी उसको. उसी जगह कैसे बोलूं? इस दुनिया में सबसे बड़े डिप्रेशन का कारण वो झूठ है. मैंने एक बार देखा, एक गांव में एक 80 साल की बूढ़ी लेडी थी. उसके मायके से एक व्यक्ति आया. जनरली लेडीज गेट सो हैप्पी, but she started crying. Please send him back, send him back. इसको वापस भेजो. लोगों ने पूछा, लोग खुश होते हैं, तू तेरे मायके से कोई आया और तू रो रही है, why so? उसने कहा आज से 60 साल पहले मेरे पिता ने इनसे ये कहकर मेरी शादी करा दी कि मैं MA पास हूं,
सच्चाई में तो मैं 10th भी फेल हूं। अगर आज ये पोल खुल गई तो क्या होगा? लोगों ने कहा बूढ़ी चुप हो जा, अब खुल भी गई तो ये 90 साल का तुझे छोड़ के कहां जाएगा, कहां भागेगा? बट व्हाट आई वांट टू से, एक बात 60 साल पहले कह दी गई, इतने दिन के बाद भी एक महिला को रोने पर मजबूर कर सकती है। जब हम इन वैल्यूज की बात करते हैं, तब चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, then you are equal. If you talk about truth, then you are equal. No matter whether you are Hindu, Muslim, Sikh, Christian, atheist, you are men, you are women, you are young, you are old, you are human or you are animal. They are also very truthful. Much more truthful than us. They don't know how to manipulate the things. बुद्धिमान की परिभाषा ये हो गई जो अपने विषय को मैनिपुलेट करना जानता है। हम बल्कि विषय को घुमाकर ये और सोचते हैं कि देखो हाउ आई हैंडल द सिचुएशन, कैसा घुमाया, कैसी बात को बदला। सबसे पहला पक्ष है सत्य। वहां से जीवन का प्रारंभ होता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, सत्य वो सीखा होता है, झूठ उसको सिखाया जाता है। वो जानता है, उसको मालूम है। एक का फोन आया, पिता ने अपने बच्चे से कहा जब फोन पे कह दे पिताजी घर में नहीं है। बच्चे ने फोन पे कह दिया पिताजी कह रहे हैं वो घर में नहीं है। सत्य वो जानता था, झूठ हमने उसको सिखा दिया। वो नेचुरल है, वो आपके अंदर है, वो जीवन का स्वरूप है, वो जीवन की परिभाषा है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ट्रूथफुलनेस। पहला स्टेप है सत्य। आपके पास अगर सत्य है तो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दूसरा नहीं हो सकता। उपलब्धियों में अगर हम रामायण की बात करें, दो कैरेक्टर हमारे सामने खड़े हैं। एक तरफ रावण खड़ा है, एक तरफ राम खड़े हैं। उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हर स्टेप पर रावण राम से आगे निकल जाएगा। किंगडम रावण का राम से बड़ा, ऑस्टेरिटीज रावण की राम से बड़ी, स्थिति सिचुएशन रावण बहुत अच्छी जगह है, राम जंगलों में घूम रहे हैं। राज्य रावण का ज्यादा बड़ा, एवरीथिंग सब रावण आगे ले जाएगा। पर बड़ी पुरानी एक कहानी ये कही जाती है, पर भारतीय इतिहास में किसी बच्चे का नाम आज तक रावण नहीं रखा गया। राम के पास कुछ नहीं था, बस एक चीज थी, सत्य था, कैरेक्टर था। ज्ञान में रावण राम से आगे था, इंफॉर्मेशन में रावण राम से आगे था। आज ज्ञान की परिभाषा सूचना रह गई। कितनी सूचना आपके पास है? वी कैन जस्ट गूगल इट, सब भरा हुआ है। और सूचना के संदर्भ में जो असली ज्ञान की परिभाषा है वो विस्मृत हो गई। ज्ञान की सबसे प्रमुख परिभाषा है कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र की भी फाउंडेशन ये तीन एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले सच्चाई, सत्य, ट्रूथफुलनेस।
दूसरे नंबर की बात है हॉस्पिटैलिटी, दया। चाहे आप किसी धर्म से क्यों न हो, ये तीन चीज हर एक चिंतन की फाउंडेशन है। दूसरे नंबर की बात है हॉस्पिटैलिटी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। महात्मा का एक अद्भुत वचन है। जिसके हृदय में हर एक व्यक्ति के प्रति सामंजस्य है, सद्भाव है, श्रेष्ठ भावना है, जो दूसरे की तकलीफ से परेशान हो सकता है, तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है, ये नेचुरल बात है। तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। तुम दुखी हो जाओ मैं सुखी रहूं, ये विकृति है, ये पतन है। तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। तुम दुखी हो जाओ मैं सुखी रहूं, ये विकृति है। पर मैं दुखी हो जाऊं तुम सुखी हो, ये भारतवर्ष की संस्कृति है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी विचारधाराएं हैं। समाज में दूसरे के लिए व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया है। आपके पास सब है, बड़ी से बड़ी डिग्री है, बड़े से बड़ी सोच है, बड़े से बड़ा विचार है, बड़ी से बड़े विश्वविद्यालय का अनुभव है, लंबे लंबे टाइटल आगे और पीछे लगे हुए हैं। पर क्या इसके पश्चात आपके हृदय में हर एक व्यक्ति के प्रति वो सद्भावना है? अगर वो है और इनमें से कुछ भी नहीं है, तो भी आप नंबर ले जाओगे। और अगर वो है और फिर इनमें से सब कुछ है, तो शायद इंसान और भगवान में बहुत कम ही फर्क रह जाएगा, बहुत मामूली सा फर्क रह जाएगा। दूसरे नंबर की बात है सद्भावना, हॉस्पिटैलिटी, ट्रूथफुलनेस, हॉस्पिटैलिटी, सबके प्रति प्रेम। हमारे भारतवर्ष डाइवर्सिटीज की खान है। यहां हर 200 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, यहां हर 200 किलोमीटर पर वर्ण बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, परंपराएं, कल्चर बदल जाता है, भोजन बदल जाता है। मैं कभी विदेश जाता हूं तो ब्रेड और बटर पर जीवन बिताना पड़ता है। भारत में जाओ तो हर 200 किलोमीटर पर भोजन बदल जाता है। गुजरात चले जाओ, हर चीज में मीठा मिलता है, हर चीज में मीठा। वहां नमक को भी मीठू कहते हैं। स्थिति ये है। दक्षिण भारत चले जाओ, हर चीज में इमली डलती है, उनका बस चले खीर में भी डाल दे वो। कितनी भेद है। ये डाइवर्सिटीज का देश है। में भोजन भी भेद है, यहां संस्कृति में भी भेद है, यहां सोच में भी भेद है, यहां भाषा में भी भेद है, यहां धर्म में भी भेद है। कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म फॉलो कर रहा है, कोई बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, फिर हिंदुइज्म में भी बहुत कुछ फॉलो कर रहा है। एक शांकरी है, एक माध्वी है, एक अद्वैतवादी है, एक द्वैतवादी है, एक शुद्धाद्वैतवादी है, एक द्वैताद्वैतवादी है, एक अचिंत भेदाभेदवादी है। डाइवर्सिटी है। वेदों के इतिहास को पढ़ो तो 33 करोड़ देवता हैं, पर हम लोग उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर रोज नए नए और आ जाते हैं। इतनी डाइवर्सिटी है। पर उसके बाद भी ये वैल्यू है।
ये स्पिरिचुअल, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी है, पर इसके नीचे बहने वाली जो स्पिरिचुअलिटी है, ये सारे के सारे संदर्भ केवल इन 3 चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। जब सत्य की बात होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिख हो, कि आप ईसाई हो, कि आप हिंदू हो, सबका स्वरूप एक सा है। सत्य के लिए सब आगे खड़े हैं, सब सत्य की अपनी अपनी खिड़कियों से उपासना कर रहे हैं। भेद अलग अलग है। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, जब सब गॉड के पीछे हैं तो इतनी डाइवर्सिटी क्यों? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक घर में अगर डॉग हो, डॉग अपने मालिक को देखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मालिक ने क्या कपड़े पहने हैं, वो मालिक को जानता है। आज हो सकता है कि वो टक्सीडो में हो, आज हो सकता है कि वो ब्लू जीन और व्हाइट शर्ट टी शर्ट में हो, आज हो सकता है कि वो अपने कोट में हो, आज हो सकता है वो विंटर क्लोथ्स में हो, वो हो सकता है समर कोट, हो सकता है कि नेकेड हो, बट इट डजंट मैटर। कपड़े बदल जाने से वो डॉग भ्रमित नहीं होता, उसके बाद भी अपने मालिक को पहचान लेता है। हम अभी इतने फेथफुल नहीं हो पाए। वो सत्य अलग अलग कपड़ों में पहना हुआ कई जगह बैठा है, अलग अलग स्वरूप और अलग अलग परंपरा और अलग अलग संस्कृति से कई जगह बैठा है, पर अभी हमारी पहचान इतनी परिपक्व नहीं हुई कि हम कपड़ों को देखकर भेद कर रहे हैं, उसके अंदर बैठे हुए सत्य को देखकर एकत्व को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जब वैल्यूज की बात आएगी तो आप चाहे किसी दर्शन से क्यों ना हो, सब एक साथ बैठ जाएंगे। सबसे पहला संदर्भ है सत्य, दूसरा संदर्भ है दैन्यता, दया, हॉस्पिटैलिटी, और तीसरा जो कि सबसे बड़ा संदर्भ है वो है लव। ट्रूथ, हॉस्पिटैलिटी एंड लव। These are the 3 things which makes your life beautiful. Love. Love is like a perfume. It's like a perfume. When you use perfume, maybe for someone specific, you're going to meet your friend, and maybe your friend likes a specific fragrance that could be of any brand. You use that specific fragrance just to please your friend. But on the way to that friend, anybody can smell the fragrance of the perfume. वो आपके उस सुगंध की प्रशंसा भी कर सकते हैं, वो वाहवाही भी कर सकते हैं। They can ask your brand also. You will say thanks and you will proceed ahead. That divine love is like that perfume. When you use that perfume of love, then anybody can smell the fragrance. एक सूफी ने एक व्यक्ति से पूछा, मैं कहां से प्रारंभ करूं? उसने कहा, खुदा से मोहब्बत कर और काफिर से नफरत कर। पहले क्या करूं? कहा, पहले मोहब्बत से बात शुरू करते हैं। कुछ साल के बाद सूफी वापस आया, पूछा फिर उस व्यक्ति ने क्या हुआ? बोले, खुदा से मोहब्बत हो गई। बोले, अब? बोले, अब काफिर से नफरत कर। सूफी बोला, अब तो असंभव हो गया। दिन और रात कैसे एक साथ खड़ी होगी? आग और पानी कैसे एक साथ खड़ा होगा? एक ही चीज हो सकती थी। अब मोहब्बत से दिल इतना भर गया कि नफरत के लिए गुंजाइश ही नहीं बची। अब होती नहीं है, चाहूंगा भी तो चाहते चाहते मोहब्बत हो जाएगी। सर्वोत्तम स्थिति उस प्रेम की है।
पर वो नहीं प्रेम जो हमें संकीर्ण कर दे। आज हम एक से करते हैं पर हजारों से नफरत कर बैठते हैं। ऐसा प्रेम जो हर एक वस्तु से हो, हर अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन, कुछ भी है, सबके साथ तुम्हारा स्नेह हो। ये दुनिया बुरी नहीं है। हम जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं वस्तु हमारे सामने वैसी ही बनती है। एवरीथिंग इज इन योर हार्ट। कुछ नहीं है। एज वी आर रिफ्लेक्टिंग इट वुड बी लाइक दैट ओनली। जैसा हम प्रस्तुत करेंगे सामने वाला पक्ष वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार जर्मनी था, तो कुछ अपनी उपासना और अपने प्रार्थना के क्रम में एक जर्मन के यहां रुका हुआ था। तो अपनी ध्यान की जगह मैंने एक स्वास्तिक बनाया। वो बंदा तो मुझे घर से निकालने को तैयार हो गया। What is this? Are you the follower of Hitler? What is this? They couldn't understand. It just looked like same. बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है. Then I had to explain him. No. It is a sign of divinity which we all Indian follow. It is a sign of swastik, not the symbol of Nazis. But just one thing they have seen with hate, I have seen with love. हमारे सामने सब चीज वैसी घटती है हम जिस प्रकार से पोर्ट्रेट करते हैं. Once what happened, I born and brought up in a very religious city, very close by to your city, Vrindavan. Those who've been to Vrindavan, except temples, there are few more things. Temples are there, but more than temples, there are monkeys, and very horrifying monkeys, I'm telling you. पति पत्नी जा रहे होंगे तो वो बंदर ऊपर पिलर से सरक के चुपचाप ऐसा नीचे आएगा और पति के कंधे से ऐसा चश्मा निकाल के ले जाएगा, वो भी सोचेगा शायद पत्नी ने उतारा क्या. हाँ, बड़ी बदमाश. अब तो इतने ट्रेंड हैं कि आपका वॉलेट निकाल के ले जाए और अगर उसमें 10-20 की नोट है तो मुंह पे मारता है. तो यहां आया क्या है करना, 1000-2000 की है तो फाड़ के फेंक देता है. Very naughty. Once what happened, I was in my school. That was only one school. That's a convent school. Now it's finished, but I studied in that for about 6-7 years. तो ठीक था, छोटा शहर जैसा वहाँ के हिसाब से स्कूल. तो मैं बैठा था बाहर अपने ब्रेक टाइम में ग्राउंड के पास में. मैंने एक दृश्य देखा. एक व्यक्ति सामने से आ रहा था. There are many foreigners are there in Vrindavan also because of bhakti yoga or because of their devotion. So foreigner था, fully built, to have gigantic chest and gigantic biceps. ऐसा कोई beast आ रहा हो ऐसा लगा सामने. And he was holding a packet of bananas. मैं पहले समझ गया ये मुसीबत में पड़ने वाला है. वो बड़े मजे से वॉक कर रहा था. देखा सामने से कम 50 बंदर इकट्ठे हुए, उसको घेरा. वो घबरा के अपने पैकेट को और तेज पकड़ के खड़ा हो गया. वो और तेज हल्ला मचाने लगे. वो थोड़ा और डरा. मुझे देख के जो थोड़ी अपनी बाइसेप्स टाइट की थी वो और लूज हो गई.
नीचे देखा एक स्टोन पड़ा था, उसने वो रॉक उठाया और उनको भगाने वाला था। उतनी देर में वो और घुर्राने लगे और उछल के उस पर और अटैक करने लगे। वो थोड़ा और घबराया, बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था, अति स्तब्ध खड़ा था। उतनी देर में एक बंदर पीछे से आया और उसने उसके हाथ से वो पैकेट झपटा और 50 लेके भाग गए। वो बॉडी बिल्डर भी वहां से भाग गया। I was thinking, what happened? Physically so powerful, couldn't do anything just in front of few monkeys? A human who can control elephant, who climbed Mount Everest, couldn't even control few monkeys? मैं बस ये सोच रहा था, तभी मैंने एक दृश्य और देखा। एक 7 साल का स्किनी, बिल्कुल पतला, वहां पर रहने वाला एक लड़का हल्ला मचाते हुए बंदरों की तरफ भागता हुआ गया। उसके हाथ में कोई पत्थर भी नहीं था, कोई डंडा भी नहीं था, बस वो उनकी तरफ भाग रहा था। बंदरों ने उसको देखा, देखते ही एकदम इधर से उधर भागे और सब उस पैकेट को छोड़ के चले गए। उसने उसमें से 2 बनाना निकाली और मजे से खुद खाने लगा। मुझे देख रहा था, मैं पास में बैठा था, मेरे पास और आने लगा, आप भी 2 केला लोगे क्या? मैंने, मरवाएगा क्या यार, तू खुद ही खा ले। I thought, what happened? I read somewhere कि monkeys के अंदर ये intuition हो जाता है, how strong your inner self is. Later on when I asked my teacher, when even physically so strong a person came, all the monkeys attacked. But very skinny, but local. He lived with monkeys, very comfortable with monkeys. For that European, it must be the first time experience to be in between monkeys. But this small child, he knew how monkey behaves, how they run, how they jump, when they are angry, when they can smile. He was very comfortable. Just to see his comfortness, just to see his confidence, सारे के सारे बंदर बहुत घबराए और उसे छोड़कर वहां चले गए। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो आपको कोई नहीं जीत सकता। अगर आप अंदर से वीक हैं तो छोटी से छोटी बात आपको घबरा सकती है, आपको डरा सकती है, आपको हरा सकती है। एंड टू स्ट्रेंथन दैट इनर सेल्फ, what can strengthen that inner self? Technology, advancement, these missiles, these weapons, बाहर बहुत सारी चीजें हमने खड़ी कर ली कि अब हम सेफ महसूस करते हैं। इतनी हिंसा की प्रवृत्तियां हमने खड़ी कर दी कि अब हम सेफ महसूस करते हैं। This Google, Facebook became a fashion. Now you live with Facebook. अब जमाना दूसरा है, वहां मुलाकात भी आजकल फेसबुक पे होती है, दोस्ती भी आजकल फेसबुक पे होती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप भी आजकल फेसबुक पे होता है, और यहाँ तक कि सुसाइड भी आजकल फेसबुक पे हो जाता है। Then I asked somebody, ये कैसे होता है? बोले just delete your account. सुसाइड हो गया। सब वहां होता है। We are just trying hard. Trying hard. सब करने के बाद भी that smile isn't there. एक व्यक्ति अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा था, 10-10 बाउल उसके पास थे, that even golden bowl, a big golden plate. I thought he must be the most successful person.
But when I went close to him, एक कटोरी में होम्योपैथिक, एक में एलोपैथिक, एक में आयुर्वेदिक, एक में सुबह वाली, एक में शाम वाली, एक में दोपहर वाली, एक में रात वाली, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद, एक पानी के साथ, एक दूध के साथ, एक सोने से पहले, एक सोने के बाद। मैंने पूछा सोने के बाद कैसे? बोले जब सोता है और घर्राटे लेता है तो पत्नी गोली डाल के पानी डाल देती है, सुबह उठ ही नहीं पाएगा। He had everything, but still lacking that smile. वही सबसे बड़ी बात है। हम समस्याओं को लंबा खींचना जानते हैं, हंसी को लंबा खींचना नहीं जानते। मेरे को किसी ने एक मैसेज भेजा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जोक सुनाऊं, कोई भी रैंडम जोक। छगनलाल हुए, छगनलाल ने अपनी पत्नी थी उसकी एक, जो अपने आप को भी बड़ा हाई फाई समझती थी, हालांकि गांव से थी, उसको इंग्लिश आती नहीं थी, बट स्टिल वो सोचती कि मैं भी इंग्लिश की पंडित हूं, अपने पति के सामने कैसे डिफीट हूं। तो वंस छगनलाल आस्क्ड हर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीनियर एंड जूनियर? बंदी ने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा के कहा, जो समुद्र के पास वो सीनियर, जो चिड़ियाघर के पास वो जूनियर। सीनियर जूनियर, सीनियर, अपना दिमाग लगाया। मैं ये जोक आपको दोबारा से सुनाऊं। छगनलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, सीनियर और जूनियर में फर्क क्या होता है? बोले समुद्र के पास वो सीनियर, चिड़ियाघर के पास वो जूनियर। मैं आपको फिर से सुनाऊं, आप इसलिए हंसोगे, लगता है इनकी कैसेट अटक गई। हंसने वाली चीज जब हमको 3 बार के बाद हंसा नहीं सकती, तो रोने वाली चीज हमें 3-3 साल तक कैसे रुला सकती है? गलत चीज हमें पूरे जीवन भर कैसे परेशान कर सकती है? सब है, पर अगर आपके पास वो स्माइल नहीं है, मेरे गुरुदेव कहते हैं एक परफेक्ट पर्सनालिटी का प्रतीक है एक परफेक्ट स्माइल और एक परफेक्ट स्मेल। ये 2 चीज आपके पास हैं तो आपसे उन्नत व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। अ परफेक्ट स्माइल एंड अ परफेक्ट स्मेल। Which will strengthen your inner self. Everything is that only. योग 2 स्थितियों पर टिका हुआ है। पतंजलि योग सूत्र पूरे के पूरे संदर्भ को अगर संक्षिप्त कह के कहें तो 2 सूत्रों पर टिका है, इनर कॉन्शियसनेस, इनर अनकॉन्शियसनेस। अंदर की जागृति और अंदर का शयन। पूरे जीवन में एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 7 मिनट को जागता होगा। सारी बात जागने की है। लाइफ तब जी हमने जब हम जागे थे। अभी जी कहां? क्योंकि अभी सोए चल रहे हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा त्यक्तो तिष्ठ परंतप। जाग। अर्जुन बोले मैं जाग के आया हूं। आई हैव ऑलरेडी टेकन बाथ, एवरीथिंग, आई एम रेडी। नहीं नहीं नहीं, तू अभी भी कहीं सो रहा है। तेरी कोई सी क्रिया, तेरी कोई सी पद्धति ये प्रमाणित नहीं कर रही कि तू जाग रहा है, तू सो रहा है। अगर आप जागे हो तो बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, धुआं अंदर ले गया, बाहर छोड़ा, अंदर ले गया, बाहर छोड़ा। धर्म एक तरफ गया, अध्यात्म दूसरी तरफ गया। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर इतना मोटा लिखा है, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये पढ़ने के बाद तो और मजा आता है पीने में। लिविंग एट द एज, सो कूल, और मजा आता है। 70 साल पहले अमेरिका में ये चहल हुई कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर रेड इंक से लिखना पड़ेगा इट इज इंजीरियस टू हेल्थ।
कंपनियों ने विरोध किया कि हमारी तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, गवर्नमेंट मानी नहीं और ये सिगरेट के पैकेट के ऊपर छाप दिया गया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जस्ट आफ्टर 6 मंथ कंपनी बंद होने की जगह 6 गुना ज्यादा चलने लगी। ये पढ़ने के बाद आदमी और मजे से पीता था। हद हो गई। दो अंदर ले गया, बाहर छोड़ा। मेरे को एक आदमी मिला, मैं जब यूके में था, पढ़ रहा था, बड़े मजे, अंदर ले गया बाहर छोड़ा, अंदर ले गया बाहर छोड़ा, फिर मुंह से निकाला तो वो कोई रिंग बना के निकाला, थोड़ी देर में जस्ट वेट एंड वॉच, फिर मुंह से ले गया, कान से निकाला, फिर मुंह से ले गया, नाक से निकाला। मैंने कहा ऐसे ही चलता रहे, थोड़े दिन में तेरे पूरे शरीर में से निकलेगा। ऐसे ही कर। क्या जागा हुआ आदमी क्या ये कभी काम कर सकता था? कभी नहीं कर। जिसकी आंखें खुली थी, ये पढ़ने के बाद क्या वो कभी ये काम कर सकता था? एक ड्रग एडिक्ट, एक पीने वाला नशे में चल रहा है, नालियों में गिर गया, सुअरिया चाट रही है, सोच रहा उर्वशी मेरे पैर दबा रही है बैठ के। क्या सोच रहा है? मर रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं छोड़ दे, फिर भी ओ यस। क्या कभी जागा हुआ आदमी ये काम कर सकता है? व्यक्ति, हमारे यहां कोई भी धर्म हो, सुबह को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। कुरान की आयत भी सुबह गाई जाती है, मंदिर के घंटे भी सुबह बजते हैं। सुबह को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई। साधना, ध्यान, नवाज, सब चीज का समय सुबह का बनाया गया। क्योंकि जब सुबह व्यक्ति जागता है ना, तो कुछ देर उसका अंतरंग जागा होता है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, मेरा इनिशिएटिव था कि सुबह सुबह का चक्कर क्या है, ये जो जप है, ध्यान है, या वॉट एवर प्रैक्टिसेस यू आर टेलिंग अस टू स्ट्रेंथन आवर इनर सेल्फ, शाम को करूं तो क्या प्रॉब्लम है? 6 to 7 शाम को। सुबह 6 to 7 इट इज सो हार्ड, आई हैव टू गो यूनिवर्सिटी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू सो मच वर्क। मैंने कहा ठीक है, आई अलाउ यू डू इन द इवनिंग 6 to 7, बट देन यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। क्या? मैंने कहा तू अपनी साधना तो शाम को 6 से 7 करियो, पर पार्टी, क्लबिंग, बर्थडे, दैट शुड बी मॉर्निंग 6 to 7। बोले ये तो रोज करना, वो तो कभी 6 महीने में एक बार होता है, वो रोज पार्टी करता है। 6 महीने, जस्ट अ वीकेंड दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग। तो चुप रहा। फिर बोला यार मजा ही नहीं आएगा सुबह करने में। था मैंने, जब पार्टी सुबह करने में मजा नहीं आ सकता, तो साधना शाम को कैसे करने में मजा आएगा? उसका टाइम है। When the morning you get up, there's something inside you which is awake, because you think what I have done yesterday and what I'm going to do today, on the basis of what I have done yesterday. कल मैं यहां तक पहुंचा था, अब मुझे यहां से और आगे बढ़ के यहां तक जाना है। उस बीच की स्थिति में अंतरंग जागा होता है। बेन मीज, एक दार्शनिक, बड़ी गंभीर बात कहता है। आज आदमी सवेरे गीता से ज्यादा अखबार पढ़ता है। उसने इसके पीछे एक साइकोलॉजी बताई। क्योंकि जब अंतरंग उसका जागा होता है, उस समय गीता पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, ग्रंथ साहब पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, तो और मुसीबत में पड़ा। जब कल को याद करता है कितनों को धोखा दिया, कितनों से गलत बोला, कितनों से झूठ बोला। गीता तो पहले ही कह रही है झूठ बोलने वाला मरेगा। ग्रंथ साहब का तो नारा ही है सत श्री अकाल। क्या होगा? ये सब पढ़ के तो और बेचैनी बढ़ेगी। पर हां, अखबार पढ़ लिया तो थोड़ी शांति मिलेगी। आई वॉज नॉट अलोन। पूरा समाज मेरे साथ यही कर रहा था। मैं अकेला चोर थोड़ी ना, पड़ोसी ने भी करी थी यार, वो भी बैठा है वहां, उस पॉलिटिशियन ने भी किया, उसने भी किया, वो भी गया, वो भी गया। फिर थोड़ी जो जागृति हुई थी वो फिर दब गई, वो फिर बैठ गई। वो जो थोड़ी कॉन्शियसनेस आई थी वो फिर अनकॉन्शियस हो गई।
वो इनर सेल्फ फिर वीक हो गया। अंदर से सब बर्बाद हैं, अंदर से सब परेशान है, मौज सबके अंदर दब रही है। समस्या ये है कि बस बाहर से ढूंढ रहे हैं। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा भीख मांगता था। 80 वर्ष तक भीख मांगी, मांगते मांगते वहीं मर गया। जिस जमीन पर वो बैठा था वो बड़ी गंदी हो गई थी, काली थी, बदबू आती थी। मोहल्ले वालों ने सोचा यहां से बू आती है। 2 फुट खोदा, नीचे देखा तो सोने से भरे हुए 3-4 घड़े रखे थे। लोग हंसने लगे, पागल था। जहां बैठा था वहीं खोद के देख लेता तो इतना मिल जाता कि जनरेशंस तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी की सारी चीज अंदर की खुदाई है। अंदर अगर खोद लिया, जिस अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू बी हैप्पी। We are using something, we are doing something, we are going to cinemas, we are drinking, we are smoking, we are going to parties, we are going to clubs. Why? Ultimately, we want to be happy. That feel of satisfaction. We want to be happy. But another question is, were you really happy? After doing this, you able to attain that happiness, that permanent happiness? एक रात की मौज रही, दूसरे दिन सब समाप्त हो गया। जिंदगी भर स्मोकिंग करी, हॉस्पिटल के बेड पर गिल्ट आ गई। क्यों करी यार? नहीं करता तो ज्यादा जी लेता। सब किया, फिर भी समस्या में फंसा रहा। बाहर से हमने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया। आज ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। पहले किसी अच्छी जगह जाना हो महीनों लगते थे। किसी को एक संदेश भेजना हो, एक चिट्ठी 2 प्रेमियों के बीच में महीनों तक पहुंचती थी। आज जस्ट अ व्हाट्सएप मैन। बहुत स्ट्रांग कर लिया। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जस्ट गूगल इट। That's a new word added to the dictionaries. Google it. अगर अकेले हो तो पूरा सोशल प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। There's social networking sites. ट्रैवलिंग इजी हो गई। व्यस्त रहने का माध्यम। मैं एक चीज आज के समय सब व्यक्तियों से, सब मुझसे कहते हैं, टाइम इज रशिंग, टाइम इज रशिंग। It's already 2014 and that's going to end. January बस अभी तो था. It's now going to be August. July is even ending. Time is rushing. पहले सब चीज करना कठिन था, उसके बाद भी समय बहुत था। आज सब चीज करना सरल है, फिर भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। बाहर हमने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया। हमारे पास मशीन्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है। आज बस सुबह बैठिए, दोपहर तक यू आर इन लंदन, रात तक यू आर इन अमेरिका, वेयर एवर यू वांट। चंद्रमा पर भी मैंने सुना कॉलोनीज बननी शुरू हो रही हैं। मंगल तक आदमी पहुंच रहा है। बट व्हाट अबाउट दैट इनर सेल्फ? It's all about something inner self. जो महसूस कर रहा है, कुछ अंदर है जो महसूस कर रहा है। जब आप सो रहे हो तो आपको पता है आप कहाँ हो, आपका हाथ कहाँ है, आपका नाक कहाँ है, आपका पैर कहाँ है। कितने लोग हैं बिस्तर के ऊपर सोते हैं, दूसरे दिन सुबह बिस्तर के नीचे मिलते हैं। रात भर में ऊपर से नीचे कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला। पर कुछ है जो उस पक्ष का अंदर अनुभव कर रहा है। बाहर से हम बड़े स्ट्रांग हो गए, पर वो इनर सेल्फ बहुत वीक हो गया, बहुत कमजोर हो गया। कई कई जगह तो मर ही गया। सारा का सारा
सबसे बड़ा संदर्भ और उपलब्धि ये है, हम अब ऐसा क्या करें जिससे हमारा इनर सेल्फ मजबूत रहे। शस्त्र हमारे पास हैं, पर शस्त्र को चलाने का विजडम हमारे पास है कि नहीं? शस्त्र और शास्त्र का जोड़ा हमारे पास है कि नहीं? वो अंदर को स्ट्रेंथन करने का फूड, दैट हंगर। कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो भोजन खिलाने से मजबूत हो जाएगा। हमारे अंदर दो डॉग रहते हैं, देयर इज वन गुड डॉग एंड देयर इज वन बैड डॉग, एंड दे बोथ ऑलवेज आर फाइटिंग। एक क्या है? हेट, जेलसी, एनवी, धोखाधड़ी, गुस्सा, एंगर, ये एक डॉग है। दूसरा क्या है? लव, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, हॉस्पिटैलिटी। सबके प्रति प्रसन्नता, स्माइल। ये दोनों अंदर हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं। जीतेगा कौन सा? जिसको आप ज्यादा खिलाओगे वो उतना स्ट्रांग होगा, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना दूसरे को हरा सकेगा। आज हेट, जेलसी वाला डॉग ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे पास वो ज्यादा मटेरियल है, हम वो फीडिंग ज्यादा दे रहे हैं। ये बेचारा धीरे धीरे कमजोर होता होता एक दिन मरी जाता है। पर लव, कंपैशन अगर हम ये दें तो दूसरा वाला परास्त हो जाएगा। ईमानदार सामने स्ट्रांगली खड़ा होगा, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्ट्रेंथनिंग दैट इनर सेल्फ। और वो इनर सेल्फ ये बाहर की वस्तुओं से नहीं प्रस्तुत हो सकती। बड़ी सिंपल बात है, मैं कुछ नया आपको सिखाने नहीं आया था, समथिंग फ्रॉम द ब्लू मून, कुछ नया ला के इधर उधर से पकड़ के कुछ ऐसी देने वाला नहीं था। आई थिंक व्हाट आई हैव सेड यू माइट ऑलरेडी न्यू। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हर बैठा हुआ यहाँ व्यक्ति उस हर विषय को जानता है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, बस जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। आप जो जानते हो, बस आपके दिल की बात मैंने कोशिश करी अपने मुंह से आपके कान से अंदर जाए। कान की चीज़ें दिल तक पहुंचती हैं, मुंह की चीज़ें केवल पेट तक पहुंचती है, आँख की चीज़ें दिमाग तक पहुंचती है। आँख से कुछ डालो, आँख से बाहर आ सकता है आंसू बनकर। मुंह में कुछ डालो, मुंह से बाहर आ सकता है बमन बनकर। पर कान से कुछ डालो तो बाहर नहीं आ सकता। कान की ऊर्जा बहुत गंभीर है। आँख केवल इस दीवार तक देख सकती है, कान इस दीवार के बाहर की भी सुन सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सुनने को श्रवण मंगलम, सुनने को बड़ा गंभीर कहा है। बस आपके दिल की बात ही अपने मुंह से आपको ही सुनाने आया था। किसी किताब को पढ़कर आपको कहने नहीं आया था, आपके दिल को पढ़कर आपको कहने आया था। मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे मेरे किसी शब्द से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, ऑब्लाइज हूँ। इतने विद्वान यहाँ बैठे और उन्होंने ध्यान से सुना। मेरी गलतियों को क्षमा और बैठने के लिए धन्यवाद। आप सबको फिर से प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। As she mentioned about the question and answers, मेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को पता होगा आंसर तो मैं ज़रूर दूंगा, नहीं तो उसके लिए सॉरी। कई चीज़ें बताई। पहले बात आपने सेटिस्फेक्शन से शुरू की, संतोष कैसे आए, उसके बाद आपने सत्य पर बल दिया कि सत्य कैसे बोलना चाहिए। फिर जो है शांति की बात ही आपने नहीं की। और ये जो मनुष्य समुदाय जो आपने बताया कि स्माइल बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको पाने में व्यक्ति अगर पा लिया तो मानो सब कुछ पा लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्माइल को पाने के लिए आपके पास कुछ ऐसा है जो हम पा सकते हैं, या पूरे इस धरती को, पूरे इस जो है उस ध्वय कुटुंबकम को हम बांट सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर शांति आ सके, लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन आ सके। दूसरी चीज़, आपने सत्य पर बहुत जोर दिया है। मैं मिथक से एक कैरेक्टर उठाना चाहूँगा। सत्य के मामले में अगर किसी एक मिथक का हम कोट करते हैं तो वह राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे।
और उनके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई अगर सत्य बोला हो। मतलब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरे अगर जानकारी में गांधी जी थे जिन्होंने पहली बार कुछ प्रैक्टिस किया है सत्य का, उसके बाद तो मैं अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। तो क्या ऐसा कुछ है आपके पास कुछ देने के लिए समाज में, जो सत्य का पूरा समाज पालन कर सके, सेटिस्फाई हो सके? और जो आपने इनर जागृति की बात की, जो बहुत सारे युवा आपके सामने खड़े हैं जो आज बहुत तरह के समस्याओं से शिकार हैं, बेरोजगारी है, भूख की आपने बात की, भूख, पेट की भूख की आप बात करते हैं कि पेट की भूख तो कैसे भी मनाई जा सकती है, लेकिन दिल की भूख जो है वो मिटती नहीं है। तो दिल की भूख कई स्तर पर भी युवाओं के अंदर भी है, वो कुछ नया चाहते हैं, नया कुछ खोज करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया आजकल पुराणों में नहीं है, बहुत चांद पर भी पहुंच रहे हैं। तो चांद के पहुंच के भी उससे आगे के लोग सोच रहे हैं कि कैसे उसके ऊपर भी क्या चीज़ है। तो वो भूख जो है, वो भूख से ही शायद डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, कैसे आपके पास कोई थीसिस है, कोई डाटा है? क्योंकि जो नैतिक शिक्षाएं आपने दी, मैं इलाहाबाद से हूँ, सच बोल रहा हूँ, 1 महीने बराबर कीर्तन भजन चलता है, महीने कुंभ मेला लगता है, बहुत सारे बापू और बाबा वहाँ इकट्ठे होते हैं। आप सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर भाव विभोर हो सकते हैं, एकदम आनंदमय हो सकते हैं। वो 1 घंटे का लगेगा कि आपकी सारी पीड़ा, सारा दुख, सारा दर्द सब एकदम गायब हो गया। लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद ही वही लोग सीधा जो है अपना धूल झाड़ते हुए निकल जाते हैं, फिर दुनिया उसी तरह से चलती है। आज तक कोई थीसिस, शांति और संतोष और जो इस तरह का कोई काम नहीं है, कोई ऐसा थीसिस, कोई इस तरह रिसर्च प्रपोजल अगर आपके पास हो, तो हम जेएनयू के विद्यार्थी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिशियन है, वो कुछ हम प्राप्त कर सकें, ऐसा कुछ बता सकें तो हमें जरूर बताएं। 2 चीज़ आपने कही जो मुझे समझ लगी। प्रश्न आपके उसमें अनुभव भी थे, आपके कटाक्ष भी थे, आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी थे, आपकी जिज्ञासा भी थी, आपका तर्क भी था। देयर सो मेनी थिंग्स। पूरा आपने फूल नहीं बुके दिया था मुझे प्रश्नों का। तो सबसे पहली चीज आपने कहा, स्माइल की बात मैंने कही। स्माइल को यूनिवर्सल करने के लिए मेरे पास क्या है? स्माइल का विस्तार करने के लिए मेरे पास भी एक स्माइल है। एक स्माइल दूसरे को प्रसन्न कर सकती है। मैंने एक बात बीच में कही थी, दुनिया वो है जैसे हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप क्रोध से देखेंगे तो आपके सामने बड़ी पुरानी बातें हैं, आप इलाहाबाद से हैं, आपका अनुभव शास्त्रीय पक्का होगा। ये दुनिया एक गुफा की तरह है, आप जैसी आवाज़ देंगे आवाज़ वापस आ जाएगी। आप क्रोध से देखेंगे तो क्रोध वापस आएगा, आप प्रसन्नता से देखेंगे तो प्रसन्नता वापस आएगी। हम घर जाकर सबसे पहला काम, आप घर जाके दरवाज़ा खटखटाइए, कोई जो आपका दरवाज़ा खोले एक बार हंस के देखिए। अगर वो आपकी माँ है और आप 1 महीने बाद उससे मिल रहे हैं और वो 1 महीने से जिस चीज़ से परेशान होगी, आपकी प्रसन्नता देखकर वो नष्ट हो जाएगी। आप उसे, वो आपको पलट के देख के हंसेगी। 1 महीने से बात न होने पर आपके मन में जो समस्या होगी, उसकी प्रसन्नता को देखकर आपके अंदर उसकी समाप्ति हो जाएगी। अंधेरे को केवल ज्योति से निवृत्त किया जा सकता है, बात ही यहाँ से शुरू हुई थी। ऐसे ही अशांति या अप्रसन्नता को प्रसन्नता से निवृत्त किया। मैं सबको यही कहता हूँ, जब कभी सेशन खत्म होता है कि यहाँ से प्रसन्नता ले जाइएगा, तो एक जगह बोल रहा था, कपल बैठे थे बहुत सारे, तो वो एक पति बेचारा अकेला आया। मैंने कहा घर जाना, दरवाज़ा खटखटाना, पत्नी दरवाज़ा खोले तो हंस के देखना। तो वो दूसरे दिन मुझसे लड़ने आ गया, बोले यार तुमने क्या किया यार? बोले क्या बात हो गई? बोले मैं वहाँ गया, वो पर मुश्किल ये हो गई कि वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही हंस लिया। पत्नी उस पर चढ़ बैठी कि यार तू ऐसा क्या करके आ रहा है जो इतना हंस रहा, 25 साल में नहीं हंसा तू इतना। तो वो हंसना ही मुश्किल हो गया उसके लिए। खैर, तो स्माइल को स्प्रेड करने के लिए आपके पास अगर स्माइल है तो सबके पास स्माइल है। दूसरे नंबर की बात है, थीसिस मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति, संतुष्टि, हज़ारों साल पहले हर धर्म के हर ग्रंथ में ये थीसिस लिखी है। गीता से बड़ी थीसिस नहीं मिली, कुरान से बड़ी थीसिस नहीं मिली, बाइबल से बड़ी थीसिस नहीं मिली। ये सब एक थीसिस है। आप तो वचन, ये तो शब्द तो ब्रह्म है, उसके अंदर उसका कोई स्वरूप नहीं है। मैं एक चीज बोलूं, हर व्यक्ति उसका अर्थ अपने अपने हिसाब से लगा सकता है। शब्दों ही ब्रह्म उपनिषद का वाक्य है, इसलिए शब्द ब्रह्म है। ये सब अपने आप की हुई थीसिस हैं। बुक्स की आप बात करें, इतनी सारी चीज हमारे पास प्रस्तुत हैं। तीसरी चीज,
प्रवचन बहुत हो रहे हैं, मुझसे भी किसी लोगों ने पूछा कि इतने ज़्यादा हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बात ऐसी है, अगर किसी के घर में बच्चा अच्छा है तो मैया एक बार बताती है और वो सुधर जाता है। पर अगर बच्चा ऊधमी है ना, मेरी 2-4 आदतें ऐसी थीं जो मैं नहीं निकाल पाता था। मेरी माँ भी यहाँ आज मेरे साथ आई हैं, जिन्होंने दीप प्रज्वलन किया, वहाँ बैठी हैं। वो उस बात के लिए अभी भी टोकती हैं, मैं नहीं निकाल पाया। और शायद हो सकता है आगामी 25 साल के बाद में मैं इनको और एक मज़े की बात बताऊं, जब ये होती है ना तब तो मैं वो कर देता हूं गलत। पर कभी मैं विदेश में अकेला हूं, जब ये मेरे साथ नहीं है और मैं उसको करने लगूं तो माँ की याद करके वो काम नहीं कर पाता। इसीलिए इस प्रकार के वाचनों का जो विस्तार है या चर्चा है, ये एक जागृति का विषय है। जब हम किसी भी आदत को करते रहते हैं और वो हमारे अंदर नहीं सुधरती है, ऐसे 25 बार माँ बताती है तो एक बार मौके पर याद आ जाती है। 25 प्रकार के प्रवचनों को सुनकर एक बार जीवन में जो सुना था उसको लागू करने का अवसर मिलता है। चौथी बात आपने कहा, मैं एक चीज सब जगह बोलता हूं और बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात हर एक धर्म में ये विशेष रही और हिंदुइज्म में, क्योंकि मैं उसको पर्सनली फॉलो करता हूँ, इम्पोज नहीं कर रहा पर पर्सनली फॉलो करता हूँ कि हमारे यहाँ जो आपने जैसे थीसिस का प्रश्न उठाया, हमारे यहाँ शास्त्रों को गौण कर दिया गया। आज जो मुझे मानते हैं या मेरे साथ चलते हैं, मुझे मानने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हाँ मेरे द्वारा मैं बस टॉर्च दिखाता रहता हूँ, वो रास्ते पर चलते रहते हैं। तो मैं एक चीज़ सबसे पहली यही कहता हूँ, आज मंदिर हैं, मंदिरों में देवताओं की भी कमी नहीं है, पर शास्त्र उपस्थित नहीं है। आज धर्मों के अपने आप को आचार्य कहने वाले लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि 18 पुराणों के नाम क्या हैं, 10 उपनिषदों के नाम क्या हैं। और ये लोग, ये स्थिति केवल वक्ताओं में ख़त्म नहीं, श्रोताओं में भी ख़त्म। मैं जैसा कहा, YouTube पर वीडियो मौजूद हैं। मैं जब 7-8 साल का था और वृंदावन में बोला करता था तो बूढ़ी बूढ़ी डंडा टेकती बूढ़ी आके बैठती थी, बिल्कुल अगली और सामान्य सी, पर जब मैं मंच से नीचे उतरता था ना तो मेरे कान में चुपचाप आके बोल देती थी, आप 2 श्लोक गलत बोल गए। दूसरे दिन से अच्छी तरह पढ़ के जाता था और ठीक बोलता था कि यार पकड़ लेंगे बैठने वाले। तो दोनों तरफ की स्थिति समाप्त हुई है। अगर हमारी शास्त्रों की तरफ पकड़ रहे, जिस धर्म के आप अनुयायी हैं, स्क्रिप्चर्स की तरफ आपकी पकड़ रहे, तो वो स्वयं एक थीसिस हैं। मैंने उन्हीं थीसिस को पढ़ कर के पाया, आप उसी थीसिस को पढ़ कर के पा सकते हैं। गीता को देखिए, इक्वलिटी खड़ी होगी। गीता ने देह की बात बड़ी नहीं करी, आत्मा की बात करी। और आत्मा वो चींटी में भी है, अंडज भी है, स्वेदज भी है, जायुज भी है, तुरीय भी है, बद्ध भी है, ज्ञात में भी है, अज्ञात में भी है, सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। आप सबको अपना मान लेंगे। जिस दिन गीता के दर्शन को आपने जीवन में उतार लिया, आपको केवल अपनी माँ या अपने भाई अपने नहीं, बल्कि एक चींटी भी अपनी लगेगी। मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। ये थीसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं उसमें अपनी दखलंदाजी क्यों दूं? और मैं दूंगा तो फिर वो मेरा एक नया पंथ शुरू हो जाएगा। आज मैंने थीसिस बना ली तो मेरा फिर एक नया पंथ शुरू हो जाएगा, पुंडरीक पंथ, पीपी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पंथ ऑलरेडी मौजूद है। जो मौजूद है मैंने उसमें से आपको दे दिया, आप उसी में से ले सकते हैं। धन्यवाद। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ दिनों पहले ऑटो में मैं अपने मित्र के साथ आ रहा था और ऑटो जैसे ही क्रॉस कर रहा था, फ्लाईओवर के नीचे से ग्रीन लाइट थी, उस पुलिस वाले ने उस ऑटो वाले को रोका और 4 थप्पड़ जड़ दिए। किसको? ऑटो वाले को। अच्छा। बिना किसी कारण के। ठीक। जब ये क्वेश्चन उससे पूछा गया कि भाई साहब आपने उसको थप्पड़ क्यों जड़े, तो उसने कहा तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। और जब उससे ये पूछा गया कि आपने इसको बिना मतलब थप्पड़ जड़ दिए, तो उसने उस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाने ले गया। बोलता मैं तेरे को बताता हूँ, तो अरविंद केजरीवाल बन रहा है। रात भर उसको थाने में रखा गया, बड़े बड़े अधिकारियों से बात की गई, क्योंकि उस बंदे की ज़िंदगी खत्म हो जाती। वो भी JNU का स्टूडेंट था, अगर उस पर FIR लग जाती तो। और पुलिस मुकदमे में वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है, मेडिकल जांच वगैरह भी हुई। सभी लोग उस बंदे को एक ही बात बोल रहे थे, यार तूने उड़ता तीर गले में लिया क्यों? ऑटो वाले तो रोजाना थप्पड़ खाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑटो वाला वहाँ जाके बोलता है, ऑटो वाले को पूछा गया कि क्या हुआ था, वो बोलने लगा ऐसा थप्पड़ मारे थे। थोड़े ही दिनों में, थोड़ी देर में मतलब, वो ऑटो वाला जो था वो बोलता है नहीं सर थप्पड़ मारा ही नहीं मुझे, थप्पड़ नहीं मारा। वो बंदा जब वापस आया, सभी ने बोला यार किसी की पत्नी सीता
किसी की पत्नी सीता, किसी का पति राम, उसी का पति राम कोई किसी को उठा के ले गया, रावण, हनुमान फालतू में पूंछ जला के बैठ गया। तू फालतू में पंचायती लेके गया ही क्यों था? ऑटो वाला तो रोजाना थप्पड़ खाता है, उसकी पंचायती थी। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हेन वी आर सेइंग द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी, हम उस इंसान को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें, उसके लिए हेल्प करें, आत्मा के लेवल पर उस इंसान की हेल्प करें, तो सभी लोग आपके ऊपर सवाल खड़ा करने देंगे तू अरविंद केजरीवाल बन रहा है क्या? एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पर्सन फेल्ट एट द टाइम। और सभी लोग उसके खिलाफ थे। उसने एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वापस आया था तो सभी के सामने शर्मनाक चेहरा था कि पुलिस वाले पे थप्पड़ मारा। पुलिस वाले ने ये कहा कि उसे थप्पड़ मारा, जबकि पुलिस वाले को हाथ भी नहीं लगाया था। नाउ हाउ कैन यू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी देन? जब आप ह्यूमन की सोचते हो एट प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हालांकि हम बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, वर्तमान मोमेंट में अगर आप सोचोगे तो लोग कहेंगे। और पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर था मुझे बोलता है, अरे यार इसकी कोई गलती नहीं है, गलत समय पे इसका इंसान जाग गया था, इसी की सजा भुगत रहा है। अब इस इंसान तो साहब इंसान है, तो जाग ही जाएगा, उसको कैसे रोका जाए? तो पक्ष ऐसा है कि ह्यूमैनिटी, इसके पश्चात भी, इसको सुनने के बाद भी मैं यही कहूँगा कि ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा संदर्भ है। मैं एक बार एक कंपनी की मीटिंग में बोल रहा था, तो उस पर एक कोट मेरे मुंह से निकला, वो मैं याद रखता हूँ। कई बार अपने मुंह से अपने लिए चीज़ निकल जाती है। तो एक बेईमान भी अगर सफल होता है तो वो इसलिए सफल होता है कि उसके अंदर काम करने वाले ईमानदार होते हैं। बेईमान के नीचे भी अगर बेईमान काम करेगा तो फिर बेईमान भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लीडर बेईमान हो गया पर नीचे सब ईमानदार हैं, इसलिए बेईमान सफल है। इसलिए सफलता ईमानदारी से ही मिलेगी। सिमिलरली आपने जो इंसिडेंट बताया उसके पश्चात भी ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा संदर्भ है। हम दूसरे के लिए क्या क्या दया का भाव रख सकते हैं, उसके अंदर इंसान जागा तो सही। थोड़े दिन के बाद जागा, जो मैं बात समझ पाया मैंने वो कहा, मैं पूरा प्रश्न आपका अच्छी तरह सुन नहीं पाया, तो जागा तो सही, पर उसके पश्चात भी हाँ, पर एक बात ज़रूर कहूँगा, हमें ह्यूमैनिटी कब होगी? जब हम अहिंसात्मक होंगे, उसका एक अंग है। पर अहिंसक होने का मतलब नपुंसक होना भी नहीं होता, जैसी स्थिति मुझे वहाँ प्रतीत हुई। एक बार एक बुद्ध के शिष्य जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा, शिष्य के, तो वो हंसता रहा। फिर व्यक्ति ने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया, वो अभी भी हंसता रहा। फिर जब वो तीसरे गाल पे थप्पड़ मारने वाला था तो साधु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसके गाल पे थप्पड़ दिया। तो वो बोला कि यार तू तो नकली साधु, तेरे गुरु तेरे धर्म ने कहा अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो, ये बुद्ध के मत हैं, तो क्या किया तूने? तो उसने कहा ठीक है, मैंने यही किया, एक गाल पे थप्पड़ मारा, मैं हंसता रहा, मैंने दूसरा गाल आगे कर दिया, तूने दूसरा थप्पड़ मार दिया। फिर तू तीसरा थप्पड़ मार रहा था, तीसरा गाल तो मेरे पास था नहीं, तेरे पास था, मैंने तेरे को मार दिया। तो अहिंसक होने का मतलब नपुंसक होना नहीं हो सकता। हमें, जहाँ गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं फिर भी डंडा अपने साथ एक रखते ही हैं। शिव ध्यान में बैठे हैं, त्रिशूल फिर भी गड़ी रहा है। हनुमान जी बड़े भगत हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, गदा फिर भी पास में रखी हुई है। तो जहाँ पर आवश्यकता है, आपको कोई तकलीफ दे और मैं कहूँ कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, तो ये दिव्यता है। पर किसी की बहन बेटी के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा और फिर आप कहो कि मैं तो अहिंसक आदमी हूँ भैया, ह्यूमैनिटी, तो आप अहिंसक नहीं, नपुंसक आदमी हैं। जैसे ये वाली एक लाइन की, एको हम भविष्यामी की, एक ही पुरुष सभी लोगों का इमेंसिपेशन कर सकता है, क्या इस लाइन का ये मतलब है? और क्योंकि पात्रता तो सबके पास बराबर नहीं है, तो जिनके पास पात्रता नहीं है तो क्या उनका भी उद्धार पुरुष कर सकता है? शायद क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं अच्छा। देखिए एको हम बहुश्याम, मतलब एक और बहु, ये कृष्ण का वचन है, वो एक हैं, एक होते हुए भी बहुत हैं। ऐसा ईश्वरीय पटल पर कही हुई बात है। पहली बात आपने मुझसे कहा एलिवेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी रोता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मैं भी खाता हूँ, मेरा भी विवाह हुआ है, सब वैसा ही जैसा आपके साथ है। पर हाँ, इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी सबने ऊपर बैठा दिया, मंच पे बैठा, आप नीचे बैठे, इससे कोई फ़र्क नहीं, केवल शक्ल दिख सके इसलिए ऊपर बैठा दिया, सम्मान कर दिया, क्योंकि भारत में अतिथि देवो भव का एक संदर्भ है। इट इज़ जस्ट वेरी नॉर्मल। आप मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा ये धर्म है कि मैं ऐसे ही आपका स्वागत करूँ। तो उससे दूसरी बात ये कि एको हम बहुश्याम, एक होते हुए भी बहुत हो जाना।
जब हम साधना के स्तर पर आत्म तत्व के प्रकाश पर, जब हम शरीर पर हैं तो केवल ये है, जब आप आत्म तत्व पर स्थित हैं तो वही सेम चीज आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। आप ए साइज की बैटरी, पेंसिल सेल जिसको कहते हैं, वो आप खरीदिए। कंपनीज अलग हैं पर वो बनती बिल्कुल एक सी हैं, साइज भी उनका स्पेसिफिक है, बिल्कुल एक सा है, पर वो लगती अलग अलग चीज़ों में। एक जना उसको गन में लगा देता है खेलने की तो वो आवाज़ करती है, वही सेम सेल निकाल के आप डॉल में लगा दो तो वो चलने लगती है, वही सेल चीज़ लगा के आप किसी और तीसरी टॉय में लगा दो वो चलने लगती है। उसका स्वरूप एक सा ही है। या 4 टॉय में 4 डिफरेंट सेल लगे हैं, सारे सेल एक से हैं, ऊपर का टॉय अलग अलग है। ऐसे ही अगर हम केवल इस खिलौने तक दिग्दर्शन करेंगे तो फिर बहुत भेद है, पर जब हम आत्म तत्व पर स्थित हो जाएंगे तब वो सेल का तो स्वरूप एक सा ही है। पहले देह है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है। जैसे एक शैंडलियर है, शैंडलियर आप देखो बाहर से दिखता है, 10,000 रुपए का शैंडलियर आ सकता है, साफ भी बाहर से होता है, कभी अंदर जाके देखना बड़ी गंदगी उसमें भी होती है, पर वो शैंडलियर बेकार है अगर उसमें 10 रुपए का बल्ब नहीं लगा है तो। अब बल्ब भी बेकार है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सिमिलरली शैंडलियर डिफरेंट है, बल्ब तो बिल्कुल एक सही है। और चलो और ऊपर के लेवल पर जाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को एक सी मिल रही है, बल्कि फैन को भी वही जा रही है, एसी को भी वही जा रही है, शैंडलियर को भी वही जा रही है। अगर हम ये देह शैंडलियर की तरह है, आत्म तत्व उस बल्ब की तरह है, और उसके अंदर बैठा परमात्म तत्व उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर हम आत्मचिंतन के द्वारा अंदर, अभी बाहर की यात्रा है, अभी इस खाल पर एक बाल गिर जाए हमें पता चल जाएगा, अंदर लीटर्स ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है हमें पता नहीं चलता। अभी हम बाहर दूर दूर तक की सुन सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर इतनी ध्वनियां हैं हम सुन नहीं सकते। आंखों से हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं पर इनको रोल करके अपने अंदर ही नहीं देख सकते। तो स्पिरिचुअलिटी का पूरा मतलब यही है कि ये जो बाहर का महसूस करने की स्थिति है ये थोड़ी से और अंदर की पहुंचे, फिर वो केवल और उससे और अंदर तक पहुंचे, फिर जब वो आत्म स्थिति और परमात्म स्थिति पर पहुंचेगी तब वो एको हम बहुश्याम, सब एकत्व के समान ही प्रतीत होगा कि हम सब एक ही हैं। दूसरी बात आपने कही पात्र, और हम ये नहीं जान सकते, शास्त्र में हर प्रकार की स्थितियों के लिए वर्णन किया है, हर प्रकार के पात्र के लिए वर्णन किया है। रामायण के डिफरेंट एडिशंस हैं, वो जो हिंदी समझते हैं उनके लिए भी, जो नहीं समझते उनके लिए भी, जो वेद समझते हैं उनके लिए भी। हमारे यहाँ पात्र के हिसाब से सारे के सारे वेद आप देखो तो वेद अभी भी कितने पंडित ऐसे हैं जिनकी पकड़ में नहीं आ सकते। फिर उसी का जब उसी को और इजीली डिफाइन किया गया तब वो वेद के उपनिषद बने, और इजीली डिफाइन किया तो महाभारत बन गई, और इजीली डिफाइन किया तो फिर वो वेदांत बन गए या उपनिषद बन गए, फिर और इजीली विथ स्टोरीज के साथ तो पुराण बन गए, फिर उसी के एक्सप्लेनेशंस और गीता आ गई। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का विधान है कि हर पात्र के व्यक्ति को अपनी अपनी समझ से उस विषय को समझने का अवसर मिले। तीसरी एक चीज मैं और कहूँगा कि हमें ये मानना चाहिए हम सभी पात्र हैं। एक व्यक्ति जो काम कर चुका है हर दूसरा व्यक्ति वो काम कर सकता है, बस पहले व्यक्ति जितना जज्बा होना चाहिए। अगर एक एवरेस्ट पर चढ़ गया तो सब चढ़ सकते हैं, बस पहले जो चढ़ा था ना उतना जोश तुम्हारे अंदर है तो तुम भी चढ़ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ हूँ या और मुझसे ऊपर के लोग कहीं वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, पर उनके जैसा बस जज्बा होना चाहिए। आप पात्र, सभी पात्र हैं, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। I'm a fresh student and I'm so lucky when I passed by on the way I saw this poster on the way. So I'm very lucky to join your wonderful lectures. Actually, most of the time you said Hindi, but for me, Hindi I don't understand. But actually, when you speak about the heart and hunger, you know, heart and hunger. I know it's a big question. You know, as I know, you know. For not in India or for all over the world, a lot of people they are homeless. They have no food. They have no water.
they can't live in the world. So compare the heart hunger. What's your opinion? With the difference between the the body hunger, not the heart hunger, inner hunger or outer hunger. Which what's your opinion about the difference? And which one is more challenging and more terrible for human being? Thank you. First thing, I really appreciate that you don't know a lot of Hindi, but still you were sitting here. So I really appreciate and big round of applause for that. But sometime when my father used to travel and sometime when he used to say long phrases of Sanskrit and nobody used to understand. So once somebody was leaving the hall. So he was close to my father. He said, "Hey, sit down." So he said, "I can't understand you. You are just speaking in Sanskrit." So my father said, "No, sit down. We are talking about spirituality and your soul understands all the languages of spirituality. So you were sitting here because I believe that your soul must be understanding everything." And second thing, you have asked me this question. What I have understood, I don't know, I can't maybe hear properly here, but whatever I have understood with your question is, see, it's all depend on the different situations. What you have said, I didn't say no for that hunger of stomach or hunger of body, but it all depend on the different situation. Even if you having hunger of your stomach also, hunger of body also, still you need to have a satisfied heart also. Both the satisfaction of both the things are needed. Once what happened, there was a guy, I have seen him, the situation like he mentioned, that somebody was crossing at night and a group of people beated this guy so badly, he fall down, bleeding like anything. There was a lady just on the road, very poor, but she hold this guy, put him in her lap and smiling at him. After some time when he was leaving, I asked him, he said, "I have never seen such a beautiful lady in my whole life." She was very ugly physically, but that whole emotion made her so beautiful, which actually that emotion was like the medicine of the heart. Both the things are needed. If if there's a hunger of body, that needs to be satisfied too, but hunger of heart, that needs to be satisfied too. Both the things need to be satisfied. What's happening now? Hunger of body, of course, as you said, they are homeless people, they have no food. That much more than that, I can see the people who have all these facilities, but still there is a hunger of heart is there. So both the things need to be satisfied, even hunger of heart and hunger of stomach, hunger of this physical appearance. And when you will actually satisfy both the needs, then that's the achievement. When you have satisfied really inside you and outside you, everything, both are needed to be satisfied. If you give somebody just food, if somebody who is so hungry, but if you just give him some food with hate, with anger, he will eat that food because he is hungry. But that will just satisfy his stomach, not the heart. For example, when Mother Teresa gives, we all give food. But when Mother Teresa gives, she just doesn't give the bread. She also gives that love. When she is giving that love and bread to that poor people, now the hunger of the heart is satisfied and the hunger of stomach is satisfied. Both the things needed to be satisfied. Thank you very much. Friends, I feel very sorry that I had to interrupt all this beautiful discourse. But as all of us know, time is the enemy of all of us. The only way to overcome this hurdle is to invite Swamiji once again after a few months, and I hope he will be able to find some time for us. And he has raised so many questions in the minds of so many of us
that it was not possible to respond to those questions within this limited span of time. So I think it was a wonderful experience for all of us, and now I request my colleague Ajay Kumar to formally thanks all our students, teachers, and of course Swamiji. Friends, I won't take really too long. One thing which I would like to acknowledge is that today for the first time, I went into a different direction. All the times I keep on thinking rationally and otherwise. Today was that inner dialogue within myself. And in the sense that we reflect about the world, about the societies as sociology or political science or even otherwise a natural scientist. But today, it had a moment in me where I thought that what is there which I should really think about it. Friends, with this sort of importance which I felt in today's Maharaj's talk, I really feel my gratitude towards Panditji. Friends, there is another direction to it, to all that he spoke, that any dialogue, any non-violence attitude and discourse which we want, truth, love, humility, they are the first basis of any true dialogue. Without humility and love, probably we cannot have dialogue. And without dialogue also, we cannot have love and humility. So unless we suspend all our beliefs that our antagonist is something of bad man or a good man, those beliefs have to be suspended, and with humility and love, we have to start this dialogue. So this is the firm basis of life, and some of the contributions of today's talk is that our Panditji, Maharajji, to whom I am really grateful, he taught us about the strength of the inner self. Smile is really something wonderful. Smile to the poor who is hunger, probably this is what they share. Most of the time they smile. Most of the time they talk, and with joy and with lot of energy, which we call it as resilient energy within them, that is what they live with. So hospitality, truth, love, dialogue, humility. Panditji, Maharajji, we are really very grateful that our audience, particularly our students, and I can see lot of teachers and also some of the families, they have come here. और उनको आपने जागृत किया, आज आपने उन्हें प्रकाश डाल कर करके काफ़ी चीज़ें जगाई, और कम से कम मुझे क्षणिक आनंद तो पूरा ही मिला, और इस पे मैं सोचने के लिए जरूर विवश हूँ कि मैं आगे भी सोचूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि आप हमारे मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आए थे। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारी माता जी आई हुई हैं, हम सबकी माता जी हैं, हमारे लिए खास करके ज़रूरी है माता जी, मैं आपको माता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद प्रोफेसर सुधीर कुमार सपोरी जो हमारे वाइस चांसलर हैं, वो शुरू से इस मामले में काफ़ी इनकरेजिंग थे। उन्होंने हमें पूरी टीम को सलाह दी कि इस तरीके से काम कुछ किया जा सकता है, इस तरीके से ये आयोजित की जा सकती है। सर, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें इनकरेज किया इस चीज़ों के लिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर भगवान जोश, who gave me all this energy that we can go ahead with this, because this is something really a different sort of university where only critical thought exists. But today, I thought that at many times I have seen purely mechanistic feeling or rational thinking doesn't really help. There is a void in us, and that void has to be developed by some kind of secular humanism, what our Guruji or Maharajji taught us today. Friends, families, all my teachers and colleagues, students, and all the honorable guests from outside, particularly the families also, children, I can see some children also probably, all those who have come and gave their patient hearing, and they were here very much all throughout, listening to our Maharajji very patiently and silently. This is something very, very great, and really I am proud that we had this talk today. Thank you very much, sir. Thank you, everybody. Friends, just a small announcement. There is a small refreshment outside. You are invited for the refreshment.
Good night from my side. And I think Arushi may have something to say. I won't take long. I just want to say a humble-hearted, wholehearted thanks to Vice Chancellor Sir. Even when he's not well and being unwell, he sat here all through. And that is very, very nice of you, sir. And everybody else who has supported us, been with us, and sat here all this while, all the students, this was for you all. And I just pray and hope that something goes with you from here in your hearts. And if it benefits one life, one person sitting in this auditorium, it's successful. Everything is successful if one person changes, if it benefits one single individual. That was our mission. I hope we see you soon again. Very, very heartfelt namaskar, thank you from the Vajanti production teams. And whoever is left, I want you to put big round of applause for the Vajanti productions team. They have worked day and night in this campus. Thank you so much. Please go and have some refreshments. It's all for you. Thank you so much.